And while there seems to be no end to the controversy around Kalyan Banerjee, the suspended TMC MP who once again mimicked Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar, a huge political slugfest that erupted last week after Kalyan Banerjee during that protest had mimicked Jagdeep Dhankar and Rahul Gandhi, who had filmed this entire mimicry. In fact, while speaking at an event in West Bengal, Kalyan Banerjee went on to claim that he would continue to mimic Dhankar. He termed it as an art form, and he said that he's well within his right to do so. He said, I'm going to do it 1,000 times over. It is my fundamental right. Listen to that statement. আপনি বলেন তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আপনি কতটা তেল মারতে পারেন। আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু যে শতাব্দী আমি খুশি হতাম इस शताब्दी के एक महापुरुष था, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। কিন্তু আমি বলতে পারবেন না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে আমাকে তেল দিতে হবে। আসল কথা হচ্ছে তাই। শুনুন, right to expression is a fundamental right. Sir, you are a lawyer, no? The right to expression is a fundamental right. Mimicry is a right, is an expression. It's my fundamental right, which cannot, nobody can destroy it. Right to give and dissent, right to protest is also my fundamental right. It's also my fundamental right. You cannot destroy it. এই দেশটা এই যে বিরোধী দলকে বুলডোজার করা, এই বিরোধী দলের পিছনে লেগে থাকা, এই তো আমাদের প্রতিবাদ, এই তো প্রতিবাদ আমাদের। সেই প্রতিবাদই তো আমরা করছি, আমরা করে চলেছি, আমরা করব। কি করবেন আপনি আমাকে? আমি জানি আপনি কি করতে পারেন আমাকে। আপনি আমাদের জেলে পুড়তে পারেন, তবু আমার প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করতে পারবেন না। আমি জানি যে আপনি চক্রান্ত করে আমাকে খুব করে দিতে পারেন, তবু আমি আমার প্রতিবাদের ভাষা আমি বন্ধ করব না। প্রতিবাদ আমি করব। আপনি বলেন তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আপনি কতটা তেল মারতে পারেন। আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু যে शताब्दी আমি খুশি হতাম इस शताब्दी के एक महापुरुष था, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। কিন্তু আমি বলতে পারবেন না, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে আমাকে তেল দিতে হবে। আসল কথা হচ্ছে তাই। শুনুন, right to expression is a fundamental right. Sir, you are a lawyer, no? The right to expression is a fundamental right. Mimicry is a right, is an expression. It's my fundamental right, which cannot, nobody can destroy it. Right to give and dissent, right to protest is also my fundamental right. It's also my fundamental right. You cannot destroy it. এই দেশটা এই যে বিরোধী দলকে বুলডোজার করা, এই বিরোধী দলের পিছনে লেগে থাকা, এই তো আমাদের প্রতিবাদ, এই তো প্রতিবাদ আমাদের। সেই প্রতিবাদই তো আমরা করছি, আমরা করে চলেছি, আমরা করব। কি করবেন আপনি আমাকে? আমি জানি আপনি কি করতে পারেন আমাকে। আপনি আমাদের জেলে পুড়তে পারেন, তবু আমার প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করতে পারবেন না। আমি জানি যে আপনি চক্রান্ত করে আমাকে খুব করে দিতে পারেন, তবু আমি আমার প্রতিবাদের ভাষা আমি বন্ধ করব না। প্রতিবাদ আমি করব।
Meanwhile, the BJP has hit back at Kalyan Banerjee, saying that the arrogance of the TMC is at its peak. Listen in. बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाया है, उनकी मिमिक्री की है। इस बार पार्लियामेंट के स्टेयर्स पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका अधिकार है ऐसा करना, कि ऐसा करने पर जगदीप धनखड़ एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं जो अपनी मां से शिकायत करता है। ये दिखाता है कि कल्याण बनर्जी, टीएमसी या इंडी गठबंधन को इस बात का कोई मलाल नहीं, उनको कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने संवैधानिक पदों का अपमान किया है। जब उन्होंने राष्ट्रपति, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहा, तब भी कोई अफसोस नहीं था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनकी कब्र खुदेगी, उनके समाज को गाली दी, तब भी अफसोस नहीं था। राहुल गांधी ने तो कहा था मैं सावरकर थोड़ी हूं कि माफी मांगूंगा। और अब उपराष्ट्रपति, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो जाट समाज से आते हैं, जो किसान पुत्र है, उनका एक नहीं दो बार इस प्रकार से मिमिक्री करना और उस पर अफसोस न जताना, उसको सही दिखाना। पहले कहना कि ये आर्ट फॉर्म था, अब कहना ये अधिकार है। क्या ये आर्ट फॉर्म और अधिकार है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का आप इस प्रकार का मखौल उड़ाएं? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और पूरे इंडी अलायंस की शय है। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, वो शय दे रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ममता बनर्जी भी जो कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब वो शय और समर्थन दे रही है। कल्याण बनर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है। अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको जनता लोक अदालत में विचार करके लंबे समय तक निर्वासित कर देगी। जगदीप धनखड़ जी तो एक किसान के बेटे हैं। जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग भी बहुत व्यथित महसूस कर रहे हैं, पूरा देश बहुत व्यथित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी का कल्याण नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का कल्याण नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जब जनता को अपना निर्णय देना होगा तो कल्याण बनर्जी सहित पूरे अलायंस का दुर्दशा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। The Kalyan Banerjee is talking about some issue of Mr. Dhankar, some physical handicap of Mr. Dhankar. This clearly shows that there is an arrogance within the Ghamandi Alliance. When you are repeating the same offense, it clearly shows that he has the Ashirwad, or he is being shielded by the senior leaders within the alliance and within the party also. Meanwhile, the opposition who backed TMC MP on the mimicry row said that mimicry is just an art and that this matter is being blown out of proportion. Listen in to that side. मेरा ख्याल है आर्ट और कला के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। धनखड़ जी ने तिल का ताड़ बना दिया, कोई ये बड़ी बात नहीं थी। इससे ज़्यादा तो मोदी जी नकल कर चुके हैं संसद के अंदर, और मैं उपस्थित था उस समय, क्योंकि इस बात को इतना ज़्यादा तूल दे दिया और केवल एक विशेष जाति का वोट को हासिल करने के लिए कि यह नकल भी अपने आप में एक मजाक बन गया, और इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं। अभी ये सरकार मिमिक्री से भी क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री जी खुद भी सदन में मिमिक्री किया था, तब बात कहा था। तो इसलिए मिमिक्री एक आर्ट है। कल्याण बनर्जी ने ये कहा, सही कहा। आप अगर के आर्ट को भी ख़त्म करोगी, अगर कोई मिमिक्री करेगा उनको गिरफ्तार करोगे क्या? फ्रीडम रहना चाहिए, आज़ादी रहना चाहिए। अगर आज़ादी को आप ख़त्म करना चाहते हो, आप अगर घोषणा ना करते इमरजेंसी चलाना चाहते, तो बात अलग है। में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो व्यावहारिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो सही नहीं बैठती। और जहाँ तक संवैधानिक ढांचे जो बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है और जो संवैधानिक पदों पे है, उसको स्वतः ही पूरे देश के लोग
संज्ञान लेते हैं और उनकी मिमिक्री नहीं करी जाती है। पर अगर कोई ऐसे अड़ा हुआ है तो जनता सब देख रही है, और मेरे हिसाब से जो ये पिछड़े समाज के लोग और जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, हम इसके पक्षधर नहीं है।